کی نشانیوں میں سے کچھ ان نشانیوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو بالکل اخیر وقت میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ بڑی نشانیوں کے شروع ہونے سے پہلے اور چھوٹی نشانیوں کے آخر میں جو نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں وہ نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دریائے فرات یہ بہت بڑا دریا ہے، بہت لمبا دریا ہے جو ترکی سے گزرتے ہوئے، شام سے نکلتے ہوئے، عراق کو پار کرتے ہوئے عرب ساگر میں جا کر کے ملتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا میں گئے تھے، ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے، تو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی جڑ میں 4 نہریں۔ ان نہروں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، سوال کیا، یہ کون سی نہریں ہیں؟ 2 نہر باطن تھی اور 2 نہر ظاہر تھی۔ جبرائیل نے بتایا کہ 2 باطن نہریں یہ جنت کی نہریں ہیں اور 2 نہر جو ظاہر ہیں یہ ایک نیل ہے اور دوسرا فرات ہے۔ تو یہی فرات کے اندر سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ زمین میں جنت کی 3 چیزوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی زمین کے اندر جنت کی 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے اجوا کھجور کا درخت، دوسرا ہے حجر اسود، اور تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کی برکت سے دریائے فرات کے اندر اترنے والا ایک 4تھائی چھٹان۔ یہ وہ دریا ہے کہ جس دریا کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات کے اندر سونے کا پہاڑ نہ نکل جائے۔ جب سونے کا پہاڑ نکل جائے گا، لوگ سنیں گے تو سب سونا حاصل کرنے کے لیے دریائے فرات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سونے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، سونا بہت قیمتی ہے، روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال ہے، دولت ہے، نوٹ ہے، کرنسی ہے۔ یہ نوٹ، کرنسی، سکے یہ سب تو بدلتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ نوٹ خراب بھی ہو جاتا ہے، بہت دن اگر رہ جائے، پرانا ہو جائے، خراب بھی ہو جاتا ہے، مگر سونا یہ نہ بدلتا ہے نہ کبھی خراب ہوتا ہے۔ ہر ملک کا الگ الگ نوٹ ہوتے ہیں، کرنسیاں ہوتی ہیں، سکے الگ الگ ہوتے ہیں، مگر یہ سونا تو ہر ملک میں وہی سونا ہے۔ آپ غور کریں اگر تو آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے ہمیں بہت سارے سکے نظر آتے تھے اور چلتے بھی تھے، 5 پیسے، 10 پیسے، 20 پیسے، 25 پیسے، 50 پیسے، 1 روپے کا نوٹ، 1 روپے کا سکہ، یہ سب کے سب بند ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اسی طرح نوٹ بھی نئے نوٹ آ گئے، پرانے نوٹ غائب ہو گئے۔ تو یہ نوٹ، کرنسیاں، سکے بدلتے رہتے ہیں، مگر یہ سونا کبھی بھی بدلتا نہیں ہے، نہ ہی یہ کبھی خراب ہوتا ہے۔ تو سونا یہ بہت اہم چیز ہے اور بہت قیمتی بھی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر فرمایا کہ لوگوں کو سونے سے کس طرح محبت ہوتی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اگر بنی آدم کو، آدم کے بیٹوں کو اگر 1 وادی سونا بھر کے دے دیا جائے تو وہ آپ کا ایک سالین وہ دوسرے وادی کی تمنا کرے گا، اور اگر دوسری وادی سونا دے دیا جائے تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ سونا وہ قیمتی جواہر ہے کہ ایک مومن جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العالمین جنت میں اسے سونے کا مہر عطا فرمائے گا۔ تو دریائے فرات کے اندر جب لوگ سنیں گے کہ سونا نکلا ہے، سونے کا پہاڑ ظاہر ہوا ہے، تو لوگ اس طرح روانہ ہو جائیں گے۔ مگر دریا کے اگر بغل میں جو لوگ رہیں گے، دریائے فرات کے علاقے میں جو لوگ رہیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ فرات کے اندر یہ سونے کا پہاڑ نکلا ہے اور لوگ ہر جانب سے آ رہے ہیں اس سونے کو لینے کے لیے، اگر ہم انہیں نہ روکیں تو وہ تو سارا سونا لے جا کر کے ختم کر دیں گے۔ اب وہ ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، اب اس دوران جنگ ہوگی، اس دوران لڑائی
होगी, बहुत ही भयानक लड़ाई। नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इतनी घमासान जंग होगी कि 100 में से 99 आदमी कत्ल कर दिया जाएगा, एक आदमी बाकी बचेगा। और हर आदमी ये सोच करके जाएगा, ये सोच करके कि शायद सोने का पहाड़ मुझे ही मिल जाए। 99 आदमी कत्ल किए जाएंगे, 100% में 99% खत्म, 1% बाकी रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वाले को ये वसीयत कर दी, ये नसीहत कर दी कि अगर तुम वहां मौजूद रहो तो उसमें से तुम कुछ भी मत लेना, अगर मौजूद रहो तो उसमें से कुछ भी मत लेना, बड़ी भयानक जंग होगी। ये एक निशानी हुई। दूसरी निशानी, जब तक मीरास का तकसीम नहीं किया जाएगा और गनीमत के माल में जब तक खुशी हासिल नहीं होगी तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। इन्ना साअता ला तक़ूमु हत्ता ला युक़सम मीरासुन वला युफ़रह बिगनीमतिन। फरमाया कि जब तक मीरास तकसीम नहीं हो जाती और जब तक के माले गनीमत के मिलने पर खुशी हासिल नहीं हो जाती तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। मीरास आप जानते होंगे, एक आदमी जब दुनिया छोड़ के चला जाता है तो उसका जो माल होता है, दौलत होती है, जायदाद होती है, जमीनें होती है, बैंक के बैलेंस से जो होता है, मकानें होती है, ये उनके औलाद के दरमियान तकसीम किया जाता है, बांटा जाता है। और सूरह निसा के अंदर उसकी सारी तफसील मौजूद है कि किसको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, बेटा का कितना हक है, बेटी का कितना हक है, भाई का कितना हक है, बहन का कितना हक है, माँ का कितना हक है, बाप का कितना हक है, सारा उसमें डिटेल तफसील बयान की गई है। ये मीरास ये इल्मुल फराइज में से है, ये फर्ज है। मगर अफसोस मेरे भाइयों और दोस्तों, शायद कि आज इस मस्जिद के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, हमको नहीं लगता है कि 1% लोग भी अगर इस अमल को किए होंगे, अदा किए होंगे, जबकि ये फर्ज है। और हुकूकुल्लाह में से है। हुकूकुल्लाह में अगर कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह अगर चाहेगा तो माफ कर देगा, चाहेगा तो अज़ाब देगा। मगर हुकूकुल इबाद का मामला तो बंदों के साथ है। ये अल्लाह ताला ने बंदों को इख्तियार दे दिया है कि बंदा का मामला है, बंदा जाने। आज हम में से बहुत सारे लोग, अक्सर लोग इस मीरास के बारे में कोई तवज्जो ही नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते। हो सकता है कि या तो हमें मालूम ही नहीं है कि मीरास बहनों को भी दिया जाता है, बेटियों को भी दिया जाता है, या फिर हमें मालूम तो है मगर हमें इसके गुनाह के बारे में पता नहीं है कि अगर ना दिया जाए तो क्या गुनाह होगा। या फिर गुनाह अगर पता है तो हो सकता है कि हम ये ख्याल करते होंगे कि कोई इंसान नहीं देता है तो हम क्यों दें। मेरे भाई और दोस्तों, गुनाहों के कामों में दूसरे की इत्तबा मत करो, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। नेकी के कामों में आप दूसरे को देखिए कि वो इतना नेकी कर रहा है, हम उससे ज्यादा नेकी करें, मगर गुनाहों के काम में दूसरे के मुताबिक मत चलिए, दूसरों के नक्शे कदम पर मत चलिए कि वो नहीं कर रहे इसलिए नहीं। कल क़यामत के दिन आप नफ्सी के आलम में होंगे और सारी नेकियां और ये सारे हज और ये सारे खैरात, सदकात और नमाज़ें, रोजे एक ही लम्हे में, मिनट में खत्म हो जाएंगी। नबी मोहतरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक इंसान उसका नामाए अमाल नमाज से, रोजे से, सदकात से, खैरात से भरा हुआ रहेगा, वो जन्नत में जा रहा होगा। याती हाजा व याती हाजा, एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तरह तरह के दावेदार होंगे। अल्लाह ये कैसे जन्नत में जा सकता है? ये वो इंसान है जिसने मेरे हक को मारा था, ये तो वो इंसान है जिसने मुझे गालियां दी थी, ये तो वो इंसान है जिसने मेरी कीमत की थी, मेरी चुगली की थी। तरह तरह के दावेदार होंगे। अभी मैदान महशर में खड़ा रहेगा कि सारी नेकियां उसके खत्म, सारे नमाज, रोजे, सदका, खैरात, दीगर सारे अमाल खत्म, अभी दावेदार बाकी रहेंगे। अल्लाह अभी तो मेरा दावा बाकी है और इसकी सारी नेकियां खत्म। अल्लाह कहेगा फरिश्तों आप उनकी गुनाहें किसके ऊपर डाल दो, वो सारे गुनाहों का बोझ लेकर ये जहन्नम में गिर पड़े। भाइयों और दोस्तों, कल का दिन
तो वो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि आयत करीमा चीख चीख करके ऐलान कर रही है, या मैं अफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कि वो दिन तो ऐसा होगा ना भाई भाई का काम आएगा, ना बहन बहन के काम आएंगे। वो दिन तो एक भाई भाई से भागेगा, एक बहन बहन से भागेगी, बीवी शौहर से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगी, माँ बेटे से और बेटा माँ से भागेगा। कौन किसके काम आएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया के अंदर किसी ने एक बारिश से जमीन अगर किसी की ले ली है, तो क़यामत के दिन 7 जमीन का तोप पहना करके उसे 7 जमीनों का तोप उसके गले के अंदर पहनाया जाए। हम इसे बहुत मामूली और हल्के में समझते हैं। सहाबा इकराम का ईमान वो था, पहले जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाजत में जाते हैं, देखते हैं वो बेहोश हो चुके हैं। नबी ने वुजू किया, वुजू करने के बाद उसके चेहरे पर छींटा मारा, जल्दी ही होश आ गया, और होश आते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा हमें मीरास के बारे में बताइए कि हम किस तरह उनका बंटवारा करें। जब कहते जाबिर की 9 बहन थी, 9 बहन, आज हमारी एक बहन होती है, हमारा सर दर्द हो जाता है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह की 9 बहनें थी। नबी बताइए हम मीरास का तकसीम कैसे करें, ना जाने कहीं मौत ना आ जाए। सूरह निसा पढ़िए आप, सूरह निसा फर्ज है इल्मुल फराइज में से। सारे लोगों का हक बयान कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और जब हक बयान करने के बाद लास्ट में अल्लाह ताला का बयान फरमाता है कि जो इसको अदा करेगा, तिल्का हुदूदुल्लाह, जो इसे अदा करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा, ऐसी जन्नत में जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, और जो इसे अल्लाह के कानून को ये नाफिज नहीं करेगा अल्लाह ताला उसे जहन्नम के अंदर डाल देगा। तरह तरह की मीरास के बारे में मेरे भाइयों और दोस्तों, हम आप शायद नहीं जानते। दुनिया के अंदर ही आप छुड़ा लीजिए अपनी जान, कहीं आखिरत में आप अल्लाह की पकड़ में गिरते ना हो जाए। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि क़यामत से पहले सूर्य की आंधी चलेगी, लाल आंधी चलेगी, सूर्य की आंधी। सूर्य की आंधी गुफा के अंदर चली, एक आदमी जो आम आदमी था दौड़ के हुए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत आ गई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेग लगाए हुए थे, जल्दी से सीधे होकर के बैठ गए। क्या कहा? सूर्य की आंधी चली, क़यामत आ गई। कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क़यामत कायम नहीं होगी, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। इन्नस्साअता ला तक़ूमु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, हत्ता ला युक़सम मीरासुन, जब तक कि मीरास तक़सीम नहीं हो जाती, वला युबहा बिगनीमतिन, और जब तक कि गनीमत के गिनने पर खुशी ना हुआ जाता। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथ से शाम की तरफ इशारा करते हैं, मुल्क शाम की तरफ इशारा करते हैं कि वहां गैर मुस्लिम मुसलमानों के मुकाबले के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। गैर मुस्लिम दुश्मन मुसलमानों के मुकाबले के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। शाम के अंदर जहां फिलिस्तीन है, जहां भी जंग लगातार जारी है, काफिर मुसलमान भी गैर मुस्लिमों के मुकाबले में सब मारा हो जाएंगे, वो भी इकट्ठा हो जाएंगे। लोग मौत पर बैयत करेंगे, कसमें खाएंगे, मौत की शर्तें लगाएंगे कि हम जाएंगे मैदानी जंग में, लड़ेंगे, मरेंगे, शहीद हो जाएंगे, बगैर फाते वापस नहीं होंगे, फतह हासिल करके ही वापस आना है, बगैर फतह में हम वापस नहीं होंगे। फरमाया कि सारे लोग चले जाएंगे, मुकाबला होगा दोनों तरफ से, सुबह से लेकर शाम तक जंगें हुई, लड़ाई होती रहेगी, रात हायल हो जाएगी, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, किसी की जीत नहीं होगी, मुसलमान भी अपने घरों में वापस होंगे, वो लोग मौत की शर्तें लगा करके गएंगे, वो सब के सब शहीद हो जाएंगे। दूसरा दिन होगा, फिर लोग मौत पर बैयत करेंगे, मौत की शर्तें लगाएंगे, और फिर वो लोगों को आगे कर दिया जाएगा जिन्होंने मौत की शर्तें लगाई है, जिन्होंने जान देने की कसमें खाई है, उनको आगे किया जाएगा। फिर ये काफिला, ये लश्कर रवाना होगा, फिर मैदान जंग में पहुंच करके जंगें होगी, फिर लड़ाई होगी, शाम तक लड़ते रहेंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जो मौत की शर्तें लगा के गए थे वो सब शहीद हो जाएंगे, फिर ये मुसलमान भी वापस गए, मुस्लिम भी वापस, फिर कोई नतीजा नहीं निकलेगा, किसी की जीत नहीं। तीसरा दिन भी इसी तरह होगा, तीसरे दिन भी जाएंगे, फिर तीसरे दिन भी इसी तरह की जंगें होगी, लड़ाई होगी। जब मौत की शर्तें ले गए थे सब शहीद हो जाएंगे, बाकी मुसलमान वापस आएंगे, काफिर भी वापस चले जाएंगे।
कोई नतीजा नहीं है। चौथा दिन होगा, तमाम मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे, जितने मुसलमान होंगे सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएंगे, सब अपने अपने घरों से निकल जाएंगे और फिर जंग होगी, बड़ा ही भयानक जंग। फरमाया कि दुनिया की तारीख ने आज तक इस तरह की जंगें ना देखी हो। इस तरह की जंगें होगी कि लाशों के अंबार लाते आएंगे। एक परिंदा एक तरफ से उड़ता हुआ जाएगा, इतने दूर तक लाश नीचे हुए रहेंगे। एक परिंदा एक तरफ से उड़ता हुआ जाएगा, उड़ते 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 थक जाएगा, फिर मर जाएगा, फिर गिर पड़ेगा। इतने लाश। और उस जगह में मुसलमानों की जीत होगी मगर खुशी नहीं होगी। जीत होगी, विरासत तकसीम नहीं होगा, गनीमत के मिलने पर कोई खुशी नहीं होगी। कैसे खुशी हो सकती है जबकि उस जंग में एक बार का 100 बेटा उस जंग में शरीक होगा। 100 में से 99 जब गिना जाएगा कि कितने मौजूद हैं, तो गिनते गिनते सिर्फ एक मिलेगा, एक बाकी रहेगा, 99 कत्ल हो चुका होगा। कितने ने अपने भाइयों को खोया होगा, कितनों ने अपने बेटों को खोया होगा, कितने ने अपने बापों को खोया होगा। कैसे खुशी हो सकती है और किस तरह का मीरास तकसीम होगा और कहां गनीमत के मिलने पर खुशी होगी। सब उदास होंगे, परेशान होंगे, चेहरे में कोई खुशी हासिल नहीं होगी। अभी कुछ ही लम्हे गुजरेंगे, कुछ ही देर, इससे भी एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अभी लोग इसी हाल में होंगे कि एक जोरदार आवाज आएगी, चीख निकलेगी और ये शैतान चीखेगा कि तुम्हारे पीछे से, तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे बाल बच्चों के अंदर दज्जाल पहुंच चुका है। लोग सारा सामान जो भी उनके पास होगा फेंक देंगे और निकल पड़ेंगे। 10 जवान घुड़सवारों को जासूस बना करके दज्जाल का पता लगाने के लिए भेजेंगे कि जाओ जा करके पता लगाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जवानों के बारे में फरमाया, इन्नी लअअलमु अस्माअहुम, कि मैं तो उन जवानों के नामों को नहीं जानता। वो जवान कौन है? फरमाया इन्नी लअअलमु अस्माअहुम, मैं उन जवानों के नाम तक को नहीं जानता हूँ। वो अस्मा आबाहिम, बल्कि मैं उन जवानों के पापों के नाम को भी जानता हूँ। वो अनुवाना कुल्लुहिम, और मैं उनके घोड़ों को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो उनके घोड़े कैसे हैं, उनके घोड़ों के रंग कैसे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। 10 जासूस जब पता लगाने के लिए दज्जाल का जाएंगे, पता चलेगा खबर झूठी थी, गलत खबर, शैतान ने आवाज लगाई थी, झूठी खबर। इसी तरह की एक दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन वो रिवायत करते हैं कि आखिरी जमाने में रूमी लोग निकलेंगे और जंग करते हुए शाम पहुंचेंगे। शाम ताबिक का एक शहर है, शाम में ताबिक एक शहर है। ताबिक के मकाम पर जब पहुंचेंगे वो मुसलमानों पर हमला करने के लिए, शाम के अंदर फिलिस्तीन के अंदर हमला के लिए जब जाएंगे, इधर से मदीने का एक लश्कर निकलेगा जो उनके मुकाबले के लिए। नबी ने फरमाया कि उस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन लश्कर वो होगा जो मदीने से निकलेगा। ये मुकाबले के लिए आएंगे, दुश्मनों के सामने उनके मुकाबले में सब आला हो जाएंगे। ये कहेंगे रूमी लोग कि तुम लोग हमारे सामने से हट जाओ, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो उनसे लड़ने के लिए आए हैं, हमें उनसे लड़ने दो, हमें उनसे किताल करने दो, जंगें करने दो, क्योंकि उन्होंने हमारे भाइयों को कैद करके रखा है। ये मदीने के सबसे बेहतरीन लोग, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त के सबसे बेहतरीन लोग वो होंगे जो मदीने से निकलेंगे, वो एक लश्कर होगा। भाइयों और दोस्तों, आज हम आप देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर, आप किसी गलतफहमी का शिकार मत होना। आप देखते हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ तरह तरह के लोग इल्जाम लगाते हैं, ताने लगाते हैं। गजा के ऊपर हमले हो रहा है, फिलिस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है, कहां साथ दे रहा है, कहां साथ दे रहा है, लेकिन सऊदी अरब साथ नहीं दे रहा है। सऊदी अरब मुनाफिक है, आले सऊदी ये यहूद है। तो सऊदीया के अंदर सलीमा हाल खुल गया है, वहाँ नाचा और गाने होते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर मदीने के अंदर एक गैर मुस्लिम औरत को भी एंट्री का परमिशन मिल गया। तरह तरह की आप देखेंगे ये बातें हो रही है। आप अपने ईमान को और अपने अकीदे को मजबूत रखिए। सऊदी अरब ये तौहीद का मरकज है।
और वहां से दीन की नशो इशाअत होती है। सऊदी अरब क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसे अच्छी तरह मालूम है। नबी ने फरमाया जब सबसे बेहतरीन लश्कर जो निकलेगा वो मदीने से निकलेगा और लोगों को जाकर रास्ते में ही रोक देगा। शाम के रावी का कर रोक देगा। जब लोग जाएंगे कहेंगे मेरा रास्ता छोड़ दो, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमें जाने दो, हमें उनसे किनार करना है। कहेगा अल्लाह की कसम हम तो आपको जाने नहीं देंगे, हम तो तुमसे मुकाबला करके ही रहेंगे। कहेंगे वो हमारे दरमियान से उनके दरमियान से हट जाओ। कहेंगे हम ना तुम्हारे दरमियान से हटेंगे ना अपने भाइयों के दरमियान से हटेंगे, हम तुमसे मुकाबला करके रहेंगे। मुकाबला होगा, घमसान की जंग होगी, तीन जमात हो जाएगी, तीन जमात बन जाएगी मुसलमानों में। एक जमात मुनाफिकीन की सिद्दत होगी, पहले ही शिकस्त मान लेगी, मैदान छोड़ के भाग जाएगी। नबी ने फरमाया ये उस वक्त के सबसे बदतरीन लोगों में से होंगे और ये ऐसे लोग होंगे कि ये तौबा भी करेंगे तो अल्लाह ताला इनकी तौबा को कबूल नहीं फरमाए। मैदान छोड़ के एक जमात भाग जाएगी, दूसरी जमात अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जंग करेंगे और शहीद हो जाएंगे और ये अफजल तरीन शुहदा में से ये पहचाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और तीसरी जमात वो होगी जंग करेगी और वो फतह हासिल करेगी और ये पता करने वाली जमात बेहतरीन जमात होगी। कभी किसी फितरे में मुब्तला नहीं होगी ये जमात। मेरे भाइयों और दोस्तों, जंगें होगी, मुसलमानों की जीत होगी, जाएंगे एक जगह अपनी तलवारों को जैतून के दरख्त में लटका करके रख देंगे, जैतून के दरख्त में लटका करके रखेंगे, तुम्हारे गनीमत का तकसीम होगा। इतने में चीख निकलेगी वीर के तुम्हारे घरों के अंदर, तुम्हारे पीछे से दज्जाल तुम्हारे बीवी और बच्चों के पास चले गए हैं। इतना सुन के सारा सामान देख करके वो दौड़ेंगे, जब जाके पता लगाएंगे पता चलेगा ये खबर झूठी थी। मगर जैसे वो शाम को पहुंचेंगे उसी वक्त वाक़ियतन दज्जाल निकल जाएगा, उसी वक्त दज्जाल निकल जाएगा। पहले की खबर गलत थी, मगर जैसे ही वो शाम पहुंचेगा अपने घरों को वापस होंगे तो वाक़ियतन उसी वक्त दज्जाल निकल जाएगा। एक और हदीस बयान करके अपनी बातों को खत्म करता हूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपने सहाबा से लोगों क्या तुम एक ऐसे शहर के बारे में जानते हो, एक ऐसे शहर के बारे में तुम जानते हो, पता है जिसके एक तरफ खुशकी है और दूसरी तरफ समुद्र ही समुद्र है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है, मालूम है वो शहर कौन सा है? फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के बनु इसहाक में से 70,000 लोग जंग करने के लिए उस शहर में ना पहुंच जाए। जब वो शहर में पहुंचेंगे बनु इसहाक, ये इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से, ये बनु इसहाक में से ये जाएंगे कुस्तुन दुनिया को पता करने के लिए। उस मकाम पे जाकर पहुंचेंगे, पड़ाव डालेंगे शहर से बाहर, हथियारों से नहीं लड़ेंगे, तीर से नहीं लड़ेंगे, तलवारों से नहीं लड़ेंगे, बस कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इतना कहना होगा कि एक तरफ की दीवार गिर जाएगी, फिर दोबारा कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तो दूसरी तरफ की दीवार गिर जाएगी, फिर तीसरी बार कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तो फिर उसका जो दरवाजा होगा, शहर का दरवाजा, वो खुल जाएगा और उस दरवाजे से वो अंदर दाखिल हो जाएंगे और हमारे गनीमत को अभी तक हासिल कर लेंगे। उसके बाद तकसीम करने के लिए तैयारी करेंगे, तकसीम कर रहे होंगे, किसी दौरान आवाज आएगी कि दज्जाल निकल चुका है, फिर वो भी दज्जाल के पीछे दौड़ पड़ेंगे। भाइयों दोस्तों, यहाँ हमें एक बात ये समझ में आ रही है कुछ कि अभी जो इतनी खतरनाक जंगें चल रही है, लगातार जंगें हो रही हैं और इतनी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर, टीवी के अंदर भी देख रहे हैं और मोबाइल के अंदर भी देख रहे हैं कि इतने बम बारूद मिसाइल जो रोजाना तबाह बर्बाद हो रहे हैं, कितने अरबों खरबों ये दौलत जो तबाह हो रही है और सारे हथियार और ये मिसाइल बम सब खत्म होते जा रहे हैं, तो ये क़यामत की निशानी है। सारे खत्म हो जाएंगे हथियार, सारे बम बारूद, एटम बम, परमाणु बम जितने सब खत्म हो जाएंगे, मिसाइल सारे टैंक खत्म हो जाएंगे। कभी तो तलवार की लड़ाई होगी, कभी तो घोड़े आएंगे, तो ये तो होना ही है। और यही हो जाए
کہ آج ہم سال 2 سال سے دیکھ رہے ہیں ایک طرف روس اور یوکرین کا یہ جنگیں چل رہی ہے، دوسری طرف فلسطین اسرائیل کی یہ جنگ لگاتار جاری ہے، اور یہ سارے بم بارود اور ہتھیار سب ختم ہو جائیں گے اور پھر یہ گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اور تلواروں کی لڑائی ہوگی انشاءاللہ۔ پھر آئندہ جمعہ ایک نشانی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، وہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، اور وہ ہے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، جو قیامت کے بڑی نشانیوں کے بالکل شروع میں اور چھوٹی نشانیوں کے لاسٹ میں وہ ظاہر وہ نشانی آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جتنے مسلمان ہیں اللہ تو ہمیں ہر طرح کی چھوٹی بڑی جو بھی فتنہ ہو ہر فتنہ سے اللہ محفوظ رکھے۔ الہ العالمین، ہمیں نیکی کے کاموں میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تو ہمیں ان بیماروں کو شفا عاجلہ کامیاب عطا فرما۔ جتنے لوگ قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی مدد فرما۔